बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is the class 6. I am your ICT teacher, and in the last lecture we have completed the chapter number 1, the computer system. Now I am telling about the exercises of the chapter number 1. So how will you solve these exercises? So first of all, you will solve, make the title page of chapter number 1, the computer system, and then you may give the head of objective type question, objective type questions in your copy. Now choose the correct option. I am reading MCQs part A. Which of the following is not a utility program? Utility program is a program designed to do maintenance the work of the system. So is the correct answer क्या है? C++. C++ is a kind of the C language. It's not a utility program. So the correct answer is part A, C++. The next part B is which of the following is not a kind of a system software. So what is the system software? System software is designed to control the operation of the system. So compiler, the first option is the compiler, driver, operating system. These are the software, system software, and fourth option is the package. Package is not a system software, it's a kind of the application software. So the correct answer is part B, package. Now the next part C, which of the following an input device? Which of the following is an input device? Input device, that devices that are those devices accept the information through from the user. So barcode reader is the input device, plotter, braille printer, and LCD is the output device. So the correct answer is part C, barcode reader. Next is part D. It is a unique combination of a vertical bar. Vertical bar, it's a barcode that represent the product information such as the prices, place of the manufacturer. So vertical bar is the barcode. The correct answer is the barcode. MCQs E is MICR character can be seen on मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. कहाँ ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है? ये हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में एक चिप होती है जिसमें हमारी जो है इंफॉर्मेशन होती है, जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से ये जो है इसको हम रीड करते हैं. ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? बैंक चेक. तो ये आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? बैंक चेक. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपके पास बैंक चेक्स में यूज़ होता है. Now next है आपका descriptive type question. Now move next part. Descriptive. आप हेड दोगे. Next head is descriptive type question. Yes.
Part A, write down the full form of MICR, magnetic ink character reader. OMR, optical mark reader. The part B is the define the program. What is the program? Step by step instruction to perform a particular task is called a program. Part C, do you understand by an operating system? What is an operating system? Operating system क्या है? When the computer runs through the operating system. Give the two example. विंडो ले लें, एंड्रॉइड है, ये सारी आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. जब तक आप इनको अपने कंप्यूटर में ऑपरेट नहीं करोगे आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा. द पार्ट डी, द नेक्स्ट पार्ट इज द पार्ट डी. डिफरेंशिएट बिटवीन द असेंबली लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज. दीज आर द लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेज रिटर्न लेटर कॉम्बिनेशन और द सिंबल्स, एंड सबसे पहले इसको क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. इसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है. व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज? डिफरेंशिएट बिटवीन द असेंबली लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज. सो व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो इजीली कंप्यूटर खुद अंडरस्टैंड करता है, वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट इज द कंपाइलर एंड द इंटरप्रीटर. They are the translator and they have the minor difference between them. Compiler आपके पास translator करता है आपकी लैंग्वेजेस को, जो आप अपनी कंप्यूटर को हम लैंग्वेज देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर उसे ट्रांसलेट करता है. किस तरीके से ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर आपके पास प्रोग्राम्स के थ्रू करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट करता है. नेक्स्ट इज द LCD प्रोजेक्टर. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फ्यू इंस्टेंस वेयर द LCD प्रोजेक्टर आर यूज मोस्टली यूज इन द प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स वगैरह लाइक. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चंस. Application base type questions. Okay, observe the given figure and give the answer of the following questions. ये फिगर आपको यहाँ सामने दी हुई है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट? दिस इज द बारकोड रीडर. दिस फिगर शोज द बारकोड रीडर एंड दिस इज द बारकोड. सो बारकोड नॉर्मली इज बीइंग यूज टू स्कैन द बारकोड. ये आपके पास क्या करता है? स्कैन करता है. इसमें क्या करता है? रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज प्राइसेस, प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चर. ये रीडर जो है आपके पास, इसको स्कैन करके आपको उसके प्राइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा. ये कहाँ बनी है इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा. तो ये फिगर आपको रिप्रेजेंट करिए बारकोड रीडर के बारे में. पार्ट 1 है आपके पास बारकोड रीडर के बारे में, आप इसे एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे. सेकेंड पार्ट, द नेम ऑफ नेम द डिवाइस यूज्ड इन द फिगर. नेम बता देना. तो नेम क्या है इस फिगर का? बारकोड रीडर. थर्ड इज द नेम ऑफ two items on which you find such lines और such types of lines. आपने ये जो lines किसी भी प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो आपने उनके 2 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आप नाम को लिख दीजिएगा. कोई से भी आप 2 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा. Next, observe the figure alongside on the left. This figure is the OMR sheet. First part, what is the sheet shown in the figure called OMR? First part में आप क्या लिखोगे? Part B का first part क्या है? OMR sheet. पार्ट बी के फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? OMR शीट. ये रिप्रेजेंट कर रही है. नेम ऑफ द डिवाइस, आपने डिवाइस का नेम बताना है. सो नेम क्या है? OMRP यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर. पर्पस क्या है इसका? आपने क्या करना है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ डिवाइस
capable of reading the printed form used for the objective type exams. So ये आपके पास क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं हम उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसमें ब्लैक कलर का डार्क शेड उस पर कर देते हैं. तो जब ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी डिवाइस है उससे जब इसको पास किया जाता है तो लाइट बीम इस पर पास होती है. तो वो लाइट बीम जो डार्क शेडेड एरिया होता है उससे पास नहीं होती, जो अनशेडेड एरिया होता है लाइट उससे पास होकर इससे हमें करेक्ट आंसर पता चल जाता है. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सी पार्ट. द यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर डिवाइस. सो फर्स्ट यू ड्रॉ द कॉलम. फर्स्ट इज द हार्डवेयर डिवाइसेस. First column is the hardware, then second is software. ठीक, आप दो कॉलम ड्रॉ करोगे और यहाँ से अपने जो भी हार्डवेयर डिवाइस है और सॉफ्टवेयर डिवाइस है आप उसे अपने यहाँ पे लिख लोगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सी डिवाइस है, पार्ट सी. नाउ मूव द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. In the lab, question number 3, collect the picture of the various types of the input device. You will have to collect the input devices from your book and give the detail each of them. आपने करना क्या है कि डिटेल यहाँ से input devices को आप collect करोगे. लाइक आप ले लोगे फर्स्ट आपके मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, कार्ड रीडर. आप इन्हें लिखोगे, इनपुट डिवाइसेस कलेक्ट करोगे और इनके एक्सप्लेन करोगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट है आपके पास कलेक्ट द नेम ऑफ द 5 एंटीवायरस डिवाइसेस. सो एंटीवायरस डिवाइसेस, antivirus software. Collect the 5 name of the antivirus software. Just only name 5 name of the antivirus software. Number 1, McAfee, Quick Heal. Third is Norton. Fourth, AVG antivirus. Fifth is Avast antivirus. What is the antivirus? Antivirus is the program that are used to deactivate the viruses program. So आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा. यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है. ऑल टॉपिक्स हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर. सो यू विल कंप्लीट योर कॉपी वर्क बाय given content solution. So now move the next chapter is chapter number 2. Now start the chapter number 2, formatting data in Excel 2013 version, Excel version 2013. This is the work of the week number 4. What is the Excel? What is the Excel? Excel is a spreadsheet program. It is very helpful and powerful for the data analysis and the documentation, and you can draw any types of sheet, graphs and chart, and you can also draw the different types of features and the formulas. When we open the Microsoft Excel, it look like this, which contain a number of rows and the columns. These boxes, these small rectangle boxes is a cell. What is the cell? Cell is where each intersection column and rows is a cell. Each cell has a name and आप किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करोगे, हर सेल का एक नेम है. आप किस तरीके से सेल का नाम फाइंड करोगे. फर्स्ट यू let's suppose I assuming these cell. ठीक है, ये मैंने इसको डार्क शेड जो किया है, मैंने ये let's suppose मैंने इस सेल को ले गया. So what is the name of this cell? First you will check the name of the column. This is vertical bar is the column and the horizontal form is the rows. So first you will check the name of the column. First you will check the name of the column. The name of the column is F. Then you will check the name of the rows is 5.
पहले आप कॉलम लिखोगे देन फिर आप रो लिखोगे. सो क्या है यहाँ पे 5 मीन्स द नेम ऑफ द दिस सेल इज द F5. लेट्स सपोज अब मैं ये वाला सपोज कर रही हूँ. लेट्स सपोज मैंने ये वाला सेल लिया जिसको मैंने शेड कर दिया. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट यू विल चेक द वर्टिकल नेम इज D and the horizontal name is 2. So the name of this cell is D2. This is the name box. यहाँ आपके पास हर सेल का नेम बॉक्स शो होगा. द नेम बॉक्स नॉर्मली डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल मतलब जिसे आप सेलेक्ट करो वो एक्टिव सेल कहलाता है. तो आप जिस सेल को भी सेलेक्ट करोगे उसका नाम आपके पास नेम बॉक्स में शो हो जाएगा. सो ये था आपके पास एक्सेल. व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग डेटा. फॉर्मेटिंग डेटा क्या है आपके पास, व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग डेटा? Your appearance of the data. You want your data appearance looks very nice, attractive and professional. So how to make attractive? Excel have a few formatting commands. So यहाँ पे मेरे पास in all tabs, जैसे ये आपके पास tabs हैं, ठीक है. आप जिन tabs को भी खोलोगे ओपन करोगे आपके पास उन्हीं के कमांड्स ओपन हो जाएंगे. ये चीज़, ये कॉलम आपके ये जो रीजन है ये आपके पास रिबन कहलाता है. ये टैब्स हैं. आप जिस टैब को ओपन करोगे उसी के कमांड्स आपके पास यहाँ ओपन हो जाएंगे. मैंने यहाँ पे होम को ओपन करके शो किया हुआ है. सो यहाँ आपके पास क्या है, ये होम के कमांड्स यहाँ पे शो हुए हैं. सो कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप फॉर्म. द फर्स्ट ग्रुप इज फॉन्ट, सेकंड इज द अलाइनमेंट एंड द थर्ड ग्रुप इज नंबर एंड द सेल स्टाइल. सो यू वांट टू चेंज योर द राइटिंग स्टाइल. सो जस्ट गो डाउन इन अ फॉन्ट. व्हाट इज द फॉन्ट? फॉन्ट मीन्स योर राइटिंग स्टाइल. आप अपने जो भी आप अपने लेट्स सपोज आपने अपने इस एक्सप्रेस जो शीट है इस पर आपने कोई भी टेबल ड्रॉ किया है. अब आप चाहते हो कि आपकी जो राइटिंग है सो वो क्या हो जाए, एक अच्छे राइटिंग स्टाइल हो जाए. सो just go to the font and click the drop down menu. So in figure the 2.3 I am showing you in 2.3. आप जैसे इस पे क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ द फॉन्ट अपीयर्स. आपके पास यहाँ पे जो है फॉन्ट की लिस्ट एक अपीयर हो जाएगी. सो अब यहाँ से कोई से भी राइटिंग स्टाइल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे. जैसे इन्होंने, अगर आप देख सकते हो कि टाइम न्यू रोमन को सेलेक्ट किया हुआ है. जैसे ही आप इसे कोई से भी राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट करोगे एक्सेल आपके फॉन्ट को उस स्टाइल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जिस चीज़ पे भी अपनी फॉर्मेटिंग कर रहे हो सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट करना होगा. उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जो जहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते, अदरवाइज आपकी क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग नहीं होगी. तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग डेटा. यानी अपनी डेटा की अपीयरेंस को आपने बहुत अट्रैक्टिव करना है, प्रोफेशनल बनाना है, तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग डेटा. किसमें? इन एक्सेल. वर्जन कौन सा? 2013. सो नाउ नेक्स्ट इज द फॉन्ट साइज. सो अब मैं अगर बात करूँ फॉन्ट साइज़ की, यानी आपकी राइटिंग का साइज़ कितना रखना चाहते हो. जस्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू. इन फिगर द 2.4 look at this, the 2.4 list font size appears. आपके पास यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास फॉन्ट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपीयर हो गई है. सो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी. आप कोई से भी नंबर सेलेक्ट करके अपनी राइटिंग का साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. Here we have the another option of the font size. This is the font increase font size and this is the decrease font size. Increase and decrease are the two other options for quickly changing the size of your text. यहाँ से आपके पास बहुत तेज़ी से आपकी जो है increase और decrease आपके font के जो size increase और decrease हो सकता है. यहाँ आपके पास list open नहीं होगी, बल्कि आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी selective cell होगा उसका quickly changing start हो जाएगी, increasing. और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज शुरू हो जाएगा. तो ये आपके पास क्या है, एक बहुत तेज़ी से अगर आपने करना है तो सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. यहाँ से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द फॉन्ट कलर. इफ़ यू वांट टू चेंज योर द फॉन्ट कलर सो जस्ट गो टू द क्लिक हेयर एंड in figure the 2.5 to view the list of the color. So you can select the any types your desired color. In the last here we have the another option is the more color. इधर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ओपन होगा. लास्ट ऑप्शन इज द मोर कलर. इफ़ यू क्लिक द मोर कलर द डायलॉग बॉक्स इज अपीयर.
ठीक है. Here we have the mix color. You can select your desired color from here. So यहाँ से आप अपना कलर को select कर सकते हो, अपने font के कलर को change कर सकते हो. Now next is the is the bold, italic and the underline. If you want, so if you want to emphasize your content of the cells, so click the bold, italic and the underline in figure the 2.8. After applying the bold, italic, underline command showing here, आप यहाँ देख सकते हो जैसे roll number, name and total mark में यहाँ पे bold की command, इटैलिक और अंडरलाइन की कमांड को शो किया हुआ है यहाँ पे. सो आप यहाँ से अपने सेलेक्टिव सेल की को टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो एंड अंडरलाइन भी कर सकते हो. इसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास. बोल्ड के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल बी कर सकते हो, यानी आप सेलेक्ट करोगे कंट्रोल बी, आप बोल्ड के लिए कंट्रोल आई इज द शॉर्टकट की ऑफ द इटैलिक एंड द कंट्रोल यू इज द शॉर्टकट की ऑफ द अंडरलाइन. Now next is the background color and the border. If you change your the background color से मुराद यानी आपने जैसे ये शीट है मेरे पास ये वाइट कलर के, बट आप जो चाह रहे हो कि आपका जो बैकग्राउंड कलर जो शीट का कलर हो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए. सो आपने सबसे पहले उन्हीं सेल को सेलेक्ट करना है जिनका बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज करना चाह रहे हो. सो यू कैन ऐड द बैकग्राउंड कलर इफ़ यू सो यू क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन फिगर द 2.9. यू कैन सी आप यहाँ देख सकते हो टू व्यू द कलर गैलरी आपके पास यहाँ पे शो हो गई है इन द. सो आप यहाँ पे कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करते हो तो आपका फॉन्ट कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा. ये दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर, फिल कलर. ठीक है, यानी आपने अपने कलर को क्या करना है, फिल करना है. ये फॉन्ट कलर है, ये फिल कलर कहलाएगा. सो इन द लास्ट ऑप्शन हियर वी हैव द मोर कलर टू गेट द एडिशनल कलर फ्रॉम हियर. Now if you want to draw your border around the cell, so you click the drop down menu. आप यहाँ पे click करोगे, so the border styles menu आपके पास क्या हो जाएगा, appear होगा. Like in figure the 2.10 ए फिगर में आप देख सकते हो यहाँ आपके पास बॉर्डर्स के कुछ कमांड्स ओपन हो गए. सो आप यहाँ से लेट सपोज आप चाह रहे हो कि आपको बॉटम बॉर्डर सिर्फ चेंज हो, जैसे बॉटम आपका सिर्फ चाह रहे हो बॉटम का बॉर्डर आ जाए तो आप यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करोगे. टॉप करना चाह रहे हो टॉप बॉटम तो आप टॉप बॉटम ले सकते हो. लेफ़्ट बॉटम, राइट बॉटम एंड नो बॉर्डर यानी लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एंड द बॉटम बॉर्डर. और नो बॉर्डर भी आप चाह रहे हो कोई भी बॉर्डर ना हो तो आप यहाँ से नो बॉर्डर का भी ले सकते हो. हियर वी हैव अनदर कमांड इज द ऑल बॉर्डर्स. ऑल बॉर्डर्स में आपके पास क्या कमांड होगी कि आप लेट सपोज कि आप चाह रहे हो थिक करना चाह रहे हो अपने बॉर्डर को, थिन करना चाह रहे हो, डबल अंडरलाइन में अपने बॉर्डर को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, सो आप यहाँ से ले सकते हो. एंड वी कैन यूज़ अनदर कमांड इज़ द ड्रॉ बॉर्डर. अगर आप ड्रॉ बॉर्डर उसके कमांड्स देखते हो तो यहाँ पे एक पेंसिल अपीयर होगी जिसके थ्रू आप अपने बॉर्डर्स को ड्रॉ भी कर सकते हो. लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे इन द लास्ट हियर वी हैव द अनदर ऑप्शन इज द मोर बॉर्डर्स. यू क्लिक सो इफ़ यू क्लिक हियर द डायलॉग बॉक्स इज अपीयर, सो यू कैन सेलेक्ट योर द डिज़ायर बॉर्डर. यहाँ से आपके पास डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी शीट को उस पर अप्लाई कर सकते हो. ये था आपके पास, ये ग्रुप है आपके पास फॉन्ट ग्रुप, जिसके थ्रू आप अपने राइटिंग का साइज इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट कलर, फिल कलर, बॉर्डर्स, ये सारे कमांड्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो. नाउ इज द नेक्स्ट ग्रुप इज़ द अलाइनमेंट. सो अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशन ऑफ द योर टेक्स्ट. आपके ये पोजीशन बताता है अलाइनमेंट. यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो. लाइक दिस इज़ द टॉप, ये है आपके पास टॉप अलाइन. इफ़ यू क्लिक हेयर, so your text, align your text of the cell at the top. ठीक, this is the center align, middle. This is the middle align. So you can align your text of a cell at the center, and this is the bottom, and you can also align your text at the bottom. These are the vertical alignment. And these are the horizontal alignment. Means align left, align center, and align right. Look at figure the 2.14. आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या है, horizontal alignment.
Now next is the orientation. So orientation refer to the related the physical position or direction of a text. If you want to align your text in a specific angle, like if you click the orientation, if you click the drop down menu, so the orientation drop down menu आपके पास यहाँ से appear हो जाएगा. यहाँ आपके पास क्या है, different angle styles है, like angle counter clockwise, एंगल क्लॉकवाइज. फिगर 2.6 में इन तमाम कमांड्स की अलाइनमेंट को आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके से टेक्स्ट पे फॉर्मेट अप्लाई होगी. क्लॉकवाइज एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो आपके पास वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप एंड रोटेट टेक्स्ट डाउन. इन द लास्ट ऑप्शन इज द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट. इफ यू क्लिक द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, डायलॉग बॉक्स इज अपेयर. सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने माउस के थ्रू भी आप अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके किसी भी स्पेसिफिक एंगल में अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट दे सकते हो. नेक्स्ट इज working with long text is the very important. जब आप अपने टेक्स्ट सेल पे टाइप करते हो, when the text cannot fit in your in a cell, so I am showing you the figure 2.18. I am showing you the long text in a cell. Sentence की और it spit out into the next cell. So sometime the next cell is already contained the data, so spill out portion will not be visible. So आप क्या करोगे, select the cell and click the wrap text. जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, द डेटा इज कन्फाइंड टू अ सेल बट इट्स डिस्प्ले इन अ मल्टीपल लाइंस इन फिगर द 2.19. आप देख सकते हो जैसे कि ये सेल मेरे पास स्पिल आउट हुआ है, सेंटेंस जो टेक्स्ट था वो स्पिल आउट हुआ है. तो आपने रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो डेटा है वो मल्टीपल लाइंस में आपको शो कर देगा. Here we have the another way of dealing with a long text. So you click the merge and the center. The text will be centered, aligned in a single text. In figure the 2.20 आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका टेक्स्ट था, टेक्स्ट के लेंस उसके लिहाज से जो आपका टेक्स्ट है सेल उतने ही आपके पास उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है. यहाँ अगर आप देखोगे इस फिगर में, अगर आप देखो यहाँ जो आपके पास ग्रीन मार्क नज़र आ रहा है, जहाँ तक ग्रीन मार्क है इसका मतलब है कि सिर्फ सेल आपका वहीं तक है. इसके आगे जो है आपके पास जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेल में मर्ज हो गया है. ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पूरे सेल में ग्रीन ऑप्शन नज़र आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेंस है वो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो चुका है किसमें, एक सिंगल सेल में. सो यहाँ पे आपके पास इससे आप अपने लॉन्ग टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो. आपके पास एक और शॉर्टकट की है, एंटर प्लस एंटर is the shortcut key of the wrap text. Now this is the alignment group. Now move the next group is the number group. So Excel have a various option for the formatting number. This is the number format box. If you click the drop down menu, so the number format menu is appear in the figure the 2.21. आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर फॉर्मेटिंग आपके पास एक लिस्ट अपेयर हो चुकी है. सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो नंबर फॉर्मेट, लाइक जैसे यहाँ पे नंबर्स, करेंसीज, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक्स. आपके पास ये जो टेबल नज़र आ रहा है, अगर आप इस टेबल को देखो, टेबल 2.22 में आपके पास हर कमांड्स को शो करके आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग दिखाई हुई है. हर नंबर की कमांड्स आपके पास यहाँ पे शो की हुई है. सो आप यहाँ से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे आप देख सकते हो नंबर की करेंसी क्या किस तरीके से आप फॉर्मेट की जाएगी, करेंसी किस तरीके से शो होगी, जो भी आप करेंसी लेना चाहते हो, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, आपके पास वन बाय वन सारे कमांड्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं. सो देयर आर द एडिशनल ऑप्शंस. Additional option, this is the accounting number format. If you click the drop down menu, so the accounting number format options appear. So
you select the currency format number from here. In the last option more accounting format, the dialog box appear. यहाँ से आपको और भी currencies आप यहाँ से select कर सकते हो. This is the currency option and this is the button of the percentage and this comma button, increase decimal and the decrease decimal. अगर आप देखो यहाँ पे कुछ सेल्स शो किए हुए हैं यहाँ पे, और इस सेल में अगर आप देख सकते हो नंबर की फॉर्मेटिंग की हुई है, देन यहाँ पे आपके पास सेकंड जो सेल है इधर आपके पास करेंसी ली हुई है PKR, पाकिस्तानी करेंसीज को फॉर्मेट किया हुआ है, इंक्रीज डेसिमल शो किया हुआ है और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल. नाउ मूव द नेक्स्ट ग्रुप इज द सेल स्टाइल. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट द सेल स्टाइल्स. इफ यू क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू, this will open the style dialog box. So you can select your desired style from here. So the cell style will be applied on your selective cell. So ये था आपका chapter number 2. Chapter number 2 is and over here. So I am giving you home task. This is a very important. Write down in your diary. Write down the shortcut key of bold, italic, underline and wrap text by taking given lecture. So your copy will be collected the first week of the September. You will have to complete your work in your copy. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.